Dear students, in this video lecture I am going to discuss ABCD parameters of short and medium transmission lines in terms of admittance and impedance. So first we will discuss the ABCD parameters for short transmission lines, then we will discuss the ABCD parameters for medium transmission lines. Again, in medium transmission lines there are four methods of representation of medium transmission lines. So first we will discuss ABCD parameters for nominal T network, then we will discuss ABCD parameters for nominal pi network, then we will discuss the ABCD parameters for source and capacitance network, and at last we will discuss the ABCD parameters for load and capacitance network. So let's start with short transmission lines. So when we represent a short transmission lines, so short transmission lines are simply represented by, here the short transmission lines are simply represented by an impedance in series. So here it is short transmission lines. So in short transmission lines, when we represent the short transmission lines, here it will be a impedance Z. This is sending end Vs, receiving end Vr. The sending end current is Is, receiving end current is Ir, and here this line impedance will be Z. So when we write the ABCD parameters, so we know that the ABCD parameter is, when we write the equation, so equation is Vs equal to AVr plus BIR. Similarly, Is is equal to CVR plus DIR. This is equation 1, this is equation 2. Now in short lines हम लोग यहाँ पर वोल्टेज और करंट का इक्वेशन लिखते हैं. शॉर्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं Vs इक्वल टू VR प्लस Z इंटू IR. सिमिलरली दूसरा अगर करंट का लिखें तो Is इज इक्वल टू IR. तो यहां पर जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से कंपेयर करेंगे और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से कंपेयर करेंगे, तो यहां से जो हमें चीजें मिलेंगी वो हमें अगर कंपैरिजन करें तो यहां पर देखिए A इंटू VR है, यहां पर 1 इंटू VR है, B इंटू IR, हियर इट इज Z इंटू IR. हियर Is इज इक्वल टू IR, दैट मींस VR टर्म इज हियर 0. तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम यहां से लिख सकते हैं कंपैरिजन करने के बाद A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू Z, C इज इक्वल टू 0 एंड D इज इक्वल टू 1. यहां से हमें मिला A इक्वल टू 1, B इक्वल टू Z, C इक्वल टू 0 एंड D इक्वल टू 1. तो हम लोग अब यहां से कंक्लूजन पर आते हैं. हम यहां से क्या देख रहे हैं कि A इज इक्वल टू D एंड इट इज इक्वल टू 1. A इज इक्वल टू D एंड इट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 माइनस 0, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या होता है कि जब A और D बराबर हो, आप कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी. तो यहां से कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस आर सिमेट्रिक. इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस आर रेसिप्रोकल. So come to the conclusion. The conclusion is short transmission lines are symmetric and reciprocal. Short transmission lines are symmetric and reciprocal. This is the conclusion. So this is all about short transmission lines. Next, let's discuss for medium length transmission lines. So for medium length transmission lines, so there are 4 different methods. So first we'll discuss for nominal T network.
First we'll discuss for nominal T network. नॉमिनल टी नेटवर्क। तो नॉमिनल टी नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन पहले बनाते हैं हम लोग। तो नॉमिनल टी नेटवर्क देखिए क्या है हमारे पास, दिस इज Z/2, अगेन दिस इज Z/2 एंड दिस इज शंट कैपेसिटेंस, या फिर इसे एडमिटेंस के टर्म में लिखेंगे तो ये हमारा होगा Y, दिस इज Z/2, दिस इज Z/2, दिस इज VS, दिस इज VR. Now we have to calculate the ABCD parameters of this network. So how to calculate ABCD parameters of this network? I am telling you the simple way to calculate ABCD parameters. See, you know that when the networks are cascaded, cascaded का मतलब फर्स्ट नेटवर्क का आउटपुट सेकेंड नेटवर्क के इनपुट से कनेक्ट है, फिर आगे सेकेंड नेटवर्क का आउटपुट थर्ड नेटवर्क के इनपुट से कनेक्ट है, तो वो सारे नेटवर्क्स एक दूसरे से कैस्केड कनेक्शन में जुड़े हुए होते हैं। तो व्हेन द नेटवर्क्स आर कैस्केडेड देन ABCD पैरामीटर्स आर मल्टीप्लाइड। तो यहां पर अगर हम ये एक नेटवर्क को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं हमारा ये पहला नेटवर्क है, ये हमारा दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क, दिस इज द सेकेंड नेटवर्क, ये फर्स्ट नेटवर्क है, दिस इज द सेकेंड नेटवर्क एंड दिस इज द थर्ड नेटवर्क। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, तीन पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं इसे, दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क Z/2, दिस इज द सेकेंड नेटवर्क Y/2 एंड दिस इज द थर्ड नेटवर्क, अगेन इट इज Z/2, अगेन इट इज Z/2। सो ये तीनों अलग अलग नेटवर्क्स हुआ। अब हम लोग इस नेटवर्क का अगर ABCD पैरामीटर लेके तो इसका ABCD पैरामीटर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये नेटवर्क शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के ही जैसा है। तो इसका ABCD पैरामीटर्स होगा A will be equal to 1, D is equal to 1, C will be 0 and D will be as it is, that means Z/2. So this is the ABCD parameter of this network. Similarly इस नेटवर्क का लिखें सेकेंड नेटवर्क का ABCD पैरामीटर्स, तो ये ABCD पैरामीटर्स हमें मिलेगा A D will be equal to 1। यहां पर देखिए अब एडमिटेंस आ चुका है, शंट एडमिटेंस, तो शंट एडमिटेंस जो होता है वो C होता है, दैट मींस C will be equal to Y/2 एंड हियर B will be equal to 0। फिर यहां थर्ड में देखते हैं, थर्ड जो नेटवर्क है हमारा, थर्ड नेटवर्क का सिमिलर क्या होगा 1 1, यहां पर Z/2 दिया हुआ है सीरीज में, इसका मतलब ये B is equal to Z/2 और C will be equal to 0। तो ये रहा हमारा थर्ड नेटवर्क। तीनों नेटवर्क का अलग अलग ABCD पैरामीटर्स हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग जब ओवरऑल ABCD पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये ओवरऑल ABCD पैरामीटर्स क्या होगा, ABCD पैरामीटर्स, इसको अगर हम लिखें तो ये होगा हमारा A B C D, it will be equal to the multiplication of all three matrices. So 1 Z/2 0 1, next it will be 1 Y, next here it is Y, not Y/2, here it is Y, it is also Y, 1 Y 0 1, third one is 1 1 0 Z/2। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसे थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का, ये रो वाइज होता है और यहां पर सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज जाएंगे। तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या टर्म मिलेगा, पहला 1 into 1 plus Z/2 into Y, so 1 plus YZ/2। Second term you are getting 1 into 0 plus Z/2 into 1, that means Z/2। Third term is 0 into 0 plus 1 into Y, so it will be Y। Fourth term will be 0 into 0 plus 1, that means 1 into, यहां पर एज इट इज लिख देते हैं 1 Z/2 0 1। अब देख रहे हैं फिर से दोनों 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो फिर से इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा।
तो यहां पर जो हम लोग फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 1 प्लस वाई जेड बाय 2 प्लस जेड बाय 2 इंटू 0, सो हियर इट इज 1 प्लस वाई जेड बाय 2। सेकेंड टर्म हम लोग देखें तो यहां पर देखिए 1 प्लस वाई जेड बाय 2 इंटू जेड बाय 2 होगा। सेकेंड टर्म का अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1 प्लस वाई जेड बाय 2 इंटू जेड बाय 2 प्लस ये होगा जेड बाय 2 इंटू 1, तो ये होगा जेड बाय 2। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है जेड बाय 2 इंटू ये क्या होगा 1 प्लस ये क्या होगा टर्म 1 प्लस वाई जेड बाय 2, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो यहां से हमें मिलेगा z इंटू 1 प्लस वाई जेड बाय 4। फ्रॉम हियर विल गेट z इंटू 1 प्लस वाई जेड बाय 4। तो हम लोग यहां पर जो सेकेंड टर्म लिख रहे हैं ये क्या मिल रहा है हमें z इंटू 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाय 4, ये रहा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मिलेगा y इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, सो हियर इट विल बी y, एंड फोर्थ टर्म विल बी y इंटू जेड बाय 2 प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस वाई जेड बाय 2। ये रहा हमारा एबीसीडी पैरामीटर ऑफ नॉमिनल टी नेटवर्क। तो अब हम लोग यहां से कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या निकल रहा है, कंक्लूजन देखिए आ रहा है a इज इक्वल टू d इट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड बाय 2। नेक्स्ट AD माइनस BC अगर आप कैलकुलेट करें तो यहां पर क्या होगा 1 प्लस वाई जेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू 1 प्लस वाई जेड बाय 4। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो हमें A इक्वल टू D भी मिला और AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 भी मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा नॉमिनल टी नेटवर्क है ये नॉमिनल टी नेटवर्क भी क्या है सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल है। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉमिनल टी नेटवर्क इज सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल। नॉमिनल टी नेटवर्क इज सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल। तो ये रहा हमारा नॉमिनल टी नेटवर्क का। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नॉमिनल पाई नेटवर्क को। तो नॉमिनल पाई नेटवर्क के लिए देखिए फिर से हमें यहां पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और इस डायग्राम के बाद यहां से फिर हम लोगों को एबीसीडी पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है फॉर नॉमिनल पाई नेटवर्क। तो हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नॉमिनल पाई नेटवर्क को और उसके बाद वहां से एबीसीडी पैरामीटर्स को का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमिनल पाई नेटवर्क। तो नॉमिनल पाई नेटवर्क को अगर हम लोग देखें तो देखिए नॉमिनल पाई नेटवर्क क्या होता है। ये हमारा मिलेगा सीरीज, इंपीडेंस विल बी Z और यहां पर क्या मिलेगा दोनों साइड y/2 एंड y/2, या फिर आप लिखते हैं c/2 एंड c/2। तो ये हमारा मिल रहा है VS VR, ये रहा हमारा y/2 और ये भी मिला हमारा y/2। तो अब हम लोग यहां पर भी देखते हैं, हमें चूंकि एबीसीडी पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसे 3 पार्ट में नेटवर्क को डिवाइड कर दिए। तीनों पार्ट को अगर हम अलग अलग लिखें तो क्या होगा हमारा, पहला नेटवर्क हमारा ये मिल रहा है, पहला मिल रहा है y/2, दूसरा नेटवर्क हमारा z का मिल रहा है, दिस इज z, और तीसरा नेटवर्क फिर से हमारा मिल रहा है y/2। थर्ड नेटवर्क की जगह y/2। तो यहां पर देखिए इसका अगर एबीसीडी पैरामीटर लिखें तो एबीसीडी पैरामीटर क्या होगा AD1 होगा और C यहां पर क्योंकि y/2 दिया गया है सेंट में, C विल बी y/2, B विल बी 0। यहां पर इसका होगा 1 1 0 Z और तीसरा होगा यहां पर 1 1 y/2 और 0। तो ये हमारा तीनों
अलग अलग एबीसीडी पैरामीटर्स हमने तीनों नेटवर्क्स का लिख दिया। अब ये चूंकि कैस्केड कनेक्शन है तो हम लोग जो ओवरऑल एबीसीडी पैरामीटर लिखेंगे एबीसीडी इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री मैट्रिसेस 1 0 y by 2 1, second will be 1 z 0 1, third will be 1 y by 2 0 1। ये रहा हमारा मैट्रिक्स। तो अब हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिलेगा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, पहला टर्म 1 मिल रहा है, दूसरा टर्म 1 इंटू जेड, जेड प्लस 0 दैट मीन्स हियर इट विल बी जेड, थर्ड टर्म y by 2 plus 0 that means y by 2, fourth term will be y by 2 into z plus 1 तो 1 plus yz by 2। और जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे y by 2 and 1। now we have to multiply these two matrices, so when we are multiplying so we write here it will be 1 plus yz by 2, 1 plus yz by 2, second term is 1 into 0 plus z into 1 तो 1 into 0 0 plus z into 1 z, third term will be y by 2 plus y by 2 into 1 plus yz by 2 तो यहां से मिलेगा हमें y into 1 plus yz divided by 4। और फोर्थ टर्म जो हमें मिल रहा है, ये फोर्थ टर्म हमें मिल रहा है 1 plus yz divided by 2, दिस इज द फोर्थ टर्म। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से देखिए हम लिख सकते हैं a इक्वल टू मिल रहा है 1 plus yz by 2, 1 plus yz by 2 और यही d की भी वैल्यू है ये, और ये b इक्वल टू मिल रहा है z एंड c इक्वल टू y इंटू 1 plus yz डिवाइडेड बाय 4, c इक्वल टू y इंटू 1 plus yz डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, a इक्वल टू d, एक पहला मिल चुका है, दूसरा हम लोग AD माइनस BC कैलकुलेट करते हैं यहां से, A इंटू डी माइनस B इंटू सी। तो AD माइनस BC को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मिलेगा हमें AD माइनस BC विल बी इक्वल टू A इंटू डी दैट मीन्स 1 प्लस yz by 2 होल स्क्वायर माइनस B इंटू सी, so z इंटू y इंटू 1 प्लस yz डिवाइडेड बाय 4। तो फिर से हमें से यहां से मिलेगा AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। अगेन यू आर गेटिंग AD माइनस BC इक्वल टू 1, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल भी है और ये रेसिप्रोकल भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कंक्लूजन, नॉमिनल पाई नेटवर्क इज सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल। नॉमिनल पाई नेटवर्क इज सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल। तो हम लोगों ने नॉमिनल पाई नेटवर्क देख लिया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं लोड सोर्स एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क, और फिर फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे लोड एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क। तो हम लोग पहले सोर्स एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क को देखते हैं। यहां पर भी हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट द एबीसीडी पैरामीटर्स। तो हियर इट इज सोर्स इन कैपेसिटेंस नेटवर्क। तो सोर्स इन कैपेसिटेंस नेटवर्क को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। सोर्स इन कैपेसिटेंस नेटवर्क का मतलब ये यहां पर इंपीडेंस है लाइन का Z, और जो कैपेसिटेंस होगा वो कैपेसिटेंस हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो सोर्स साइड में कनेक्टेड है। तो ये होगा हमारा Y, ये Vs है, ये हमारा Vr है। तो अब हम लोग यहां पर इसे देख सकते हैं, इस चूंकि इसका एबीसीडी पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दोनों एक दूसरे से कैस्केड कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो व्हेन वी राइट एबीसीडी पैरामीटर्स ऑफ द इंडिविजुअल नेटवर्क्स, तो फर्स्ट नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर होगा 1 1, शंट ब्रांच है Y, सीरीज ब्रांच में 0। दूसरा होगा यहां पर 1 1, C will be 0 and here B will be Z. So when we write the ABCD parameters of source and capacitance network, A
B, C, D, it will be equal to, it is equal to multiplication of these two matrices 1 0 y 1, second matrix is 1 1 z 0. So these two are the multiplications. तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो फ्रॉम हियर विल गेट ABCD इक्वल टू ABCD इक्वल टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 दैट मीन्स 1. सेकेंड इज 1 इंटू z प्लस 0 इंटू 1 दैट मीन्स z. थर्ड वन इज y इंटू 1 प्लस y इंटू 1 plus 1 into 0 that means y. Fourth one will be yz plus 1 that means 1 plus yz. So from here we can write a equal to 1, b equal to z, c equal to y and d equal to 1 plus yz. तो हम लोग फिर से यहां से देखें तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, a is not equal to d और दूसरा हमें मिल रहा है ab माइनस ad माइनस bc. तो AD माइनस BC अगर आप कैलकुलेट करें सो AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 प्लस YZ इंटू 1 माइनस BC दैट मीन्स माइनस YZ. सो इट इज इक्वल टू 1. तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू D, इट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो नॉट सिमेट्रिक. लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहां पर, ये रेसिप्रोकल है बट दिस वन इज रेसिप्रोकल because AD minus BC is equal to 1, so this is reciprocal. तो when we write the conclusion, तो conclusion क्या लिखेंगे हम लोग कि source and capacitance network is reciprocal but not symmetric. Load and capacitance network is reciprocal but not symmetric. So this is the conclusion. तो ये हमारा पहला नेटवर्क मिला है जो कि सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रेसिप्रोकल है. अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सोर्स एंड. अब सोर्स एंड हो गया तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लोड एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क. तो लोड एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क को देखते हैं कि इसका एबीसीडी पैरामीटर्स क्या है. लोड एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क. तो लोड एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क का पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं. यहां देखिए this is Z and here the capacitance is assumed to be connected in the receiving end side. So here it will be Y, this is Z, this is Vs, this is Vr. So again this network can be divided into two parts. So we write the ABCD parameter of first part, it will be 1 1 0 Z. For the second part it will be 1 1 y 0. तो जब हम ओवरऑल एबीसीडी पैरामीटर लिखें, when you write the overall ABCD parameter A B C D, it will be equal to multiplication of these two matrices. First is 1 Z 0 1, second one is 1 0 y 1 1 0 y 1. So when we multiply both matrices, it will be equal to 1 plus, here it is 1 into 1 plus z into y. So 1 plus, it will be 1 plus yz. Second it will be 1 into 0 plus z into 1 that means z. Third one will be 0 into 1 plus y, so it will be y. And fourth one will be 1 into 0 plus 1 into 1 that is 1. So from here we write that A is equal to 1 plus yz, B is equal to z, C is equal to y and D is equal to 1. D is equal to 1.
तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट ए इज नॉट इक्वल टू डी एंड व्हेन यू फाइंड एडी माइनस बीसी, सो एडी माइनस बीसी इज इक्वल टू 1. A is not equal to D means not symmetric. AD minus BC equal to 1, that means reciprocal. That means reciprocal. तो हम लोग कंक्लूजन जो लिखेंगे यहां पर, तो कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है कि लोड एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क is reciprocal but not symmetric. Load in capacitance network is reciprocal but not symmetric. So this is the conclusion. तो हमने शॉर्ट और मीडियम लाइंस का सारा एबीसीडी पैरामीटर्स का कैलकुलेशन कर लिया. तो हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हैं कि कौन कौन सा नेटवर्क हमें सिमेट्रिक मिला है, कौन कौन सा रेसिप्रोकल मिला है और कौन कौन सा दोनों मिला है. तो जब हम इस कंक्लूजन को लिख रहे हैं तो देखिए कंक्लूजन क्या है हमारा. कंक्लूजन हमें दो तरह का मिला. एक टाइप का नेटवर्क हमें ऐसा मिला जो कि सिमेट्रिक भी हो एंड सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल दोनों है. सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल में हमने देखा तो कौन कौन सा आया. इसमें हमारा मिला पहला शॉर्ट लाइंस और मीडियम में कौन कौन सा मिला, नॉमिनल टी एंड नॉमिनल पाई. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस प्लस मीडियम में नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई लाइंस, दीज आर रेसिप्रोकल एज वेल एज सिमेट्रिक. और जो दूसरा टाइप मिला है वो रेसिप्रोकल बट नॉट सिमेट्रिक. रेसिप्रोकल बट नॉट सिमेट्रिक. तो यहां पर हमें कौन कौन सा मिला है, हमें यहां पर मिला है, एक तो मिला है सोर्स एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क, और दूसरा यहां पर क्या मिला है, लोड एंड कैपेसिटेंस नेटवर्क. सेकेंड वन इज लोड एंड कैपेसिटेंस network. So this type of questions can be asked in your examinations. That means they will give some like the matching type question, or maybe they will give some objective question, and there they can ask you about these things. That means maybe they will ask nominal pi networks are symmetric. Some options will be given whether it is symmetric, whether it is reciprocal, or whether both. तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस के लिए ये कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस को डिस्कस करेंगे.